and now we are going to study types of fraction. What are the types of fraction? See here, first type, proper fraction. What is proper fraction? A fraction whose numerator is less than its denominator is called a proper fraction. वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता हो, ठीक है, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा होता हो, तो फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए एग्जांपल 4/5, 3/7, 101/235, 4/7, 9/14 एटसेट्रा। यहां पर देखिए तो ऊपर वाला नंबर जो है नीचे वाले नंबर से छोटा है, ठीक है, इट मींस न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। सो दिस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इस तरह के फ्रैक्शन कहलाते हैं जिनमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ठीक है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा होगा। सो दिस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शंस। Now see here, second type of fraction is improper fraction. What is improper fraction? A fraction whose numerator is greater than or equal to its denominator is called as improper fraction. Improper fraction वो होता है जिसमें न्यूमरेटर रहता है, ठीक है, वो डिनोमिनेटर से बड़ा रहता है या फिर डिनोमिनेटर के इक्वल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल 7/5, यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहाँ पे देखिए 25/12, 180/62। In all these fractions, numerator is greater than the denominators. That's why these types of fractions are called as improper fraction. Numerator is greater than denominators in all these fractions. Now see your second point. Numerator is equal to the denominators. 3/3, 4/4, 5/4, etc. In this fraction, numerator is equal to denominator. So these types of fractions are also called improper fraction. Numerator is equal to denominator. So these types of fractions are also called improper fraction. See here again, a fraction whose numerator is greater than or equal to its denominator. मतलब कि ऊपर वाला नंबर जो है, ठीक है, नीचे वाले नंबर से बड़ा रहना चाहिए या फिर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। सो इस तरह के फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। सो यहाँ पे देखिए, a fraction whose numerator is greater than or equal to its denominator is called as improper fraction. So these are all the examples of improper fraction. Now see here, if the numerator and denominator of a fraction are equal, the value of the fraction is unity. यहाँ पे देखिए एग्जांपल, यहाँ पर एक फ्रैक्शन है 4/4, numerator is equal to denominator. Numerator is 4 and denominator is also 4. So 4/4 is equal to 1. So यहाँ पे देखिए और -3/-3. Numerator is -3 and denominator is also -3. So numerator and denominator is same. So the value of this fraction is 1. So that's why if the numerator and denominator of a fraction are equal, the value of the fraction is unity. Unity means 1. So see here, 4/4 is equal to 1, -3/-3 is equal to 1, and etc. Now see here, third type of fraction is mixed fraction. What is mixed fraction? A mixed fraction consists of two parts. First part an integer and second part a proper fraction. Mixed fraction में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होगा? an integer, एक इंटीजर होगा। सेकंड पार्ट अ प्रॉपर फ्रैक्शन, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। एग्जांपल देखिए 4/2/3, यहां पर एक इंटीजर है 4 और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है 2/3। सो 4/2/3 इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन कंसिस्टिंग ऑफ एन इंटीजर 4 एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन 2/3। तो यहां पर एग्जांपल है 4/2/3, इसमें एक इंटीजर है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इंटीजर क्या है? 4 है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? 2/3। सो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड एज mixed fraction. See here some examples of mixed fraction. 3/2/5. 3/2/5 can also be written as 3 plus 2/5. ठीक है, यहां पर देखिए एक इंटीजर है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो 3/2/5 is equal to 3 plus 2/5. 8/5/6 is equal to 8 plus 5/6. -2 1/8 is equal to minus under bracket 2 plus 1/8. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। यहां देखिए कन्वर्सली 2 plus 3/8 is equal to 2 3/8. 7 plus 4/9 is equal to 7 4/9, ठीक है। -8 minus 5/6 is equal to minus under bracket 8 plus 5/6. यहाँ पर प्लस क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस था, माइनस कॉमन ले लिया, इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया। So -8 minus 5/6 is equal to minus under bracket 8 plus 5/6 is equal to minus 8 5/6 and so on.
Now see your fourth type of fraction is like and unlike fractions. What are like and unlike fractions? Two or more fractions with the same denominator but different numerators are called like fractions. यहाँ पर देखिए दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन, ठीक है, जिसके सेम डिनोमिनेटर रहते हैं. डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर, ठीक है, और न्यूमरेटर क्या होता है, ऊपर वाला नंबर होता है, ठीक है. तो दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहे, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रहे और न्यूमरेटर डिफरेंट रहे. न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला नंबर डिफरेंट रहेगा और डिनोमिनेटर सेम रहेगा अगर, तो इस टाइप के फ्रैक्शन कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शन. सो यहाँ पर देखिए लिखा है टू और मोर फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर. यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है 5 5 5 5 5 बट न्यूमरेटर इज डिफरेंट 3 1 2 4 7. न्यूमरेटर इसमें डिफरेंट है, डिनोमिनेटर सेम है. So that's why these types of fractions are called like fraction. यहाँ पर देखिए two or more fractions with different denominators are called unlike fractions. यहाँ पर देखिए like fraction में क्या होता था कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहते थे, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रहते थे और न्यूमरेटर डिफरेंट रहते थे, ठीक है. लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेंगे, ठीक है. डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर डिफरेंट है. देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 है और न्यूमरेटर तो वैसे भी डिफरेंट है ही, ठीक है. तो एग्जांपल है यहाँ पर देखिए अनलाइक फ्रैक्शन का 5/9, 7/8, 3/4, 1/3. So in this types of fractions the denominators are different in unlike fraction, but in like fractions the denominators are same. देखिए यहाँ पर ये like fraction के एग्जांपल है 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5. इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाला नंबर सेम है 5 5 5 5 5, ठीक है. लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं, ठीक है. टू और मोर फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट रहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन में. तो यहाँ पे देखिए अनलाइक फ्रैक्शन के एग्जांपल्स 5/9, 7/8, 3/4, 1/3. So see here, you can see here the denominators are different 9, 8, 4, 3 and etc. So these types of fractions in which denominators are same, these types of fractions are called like fractions, and the two or more fractions in which the denominators are different are called unlike fractions. Now see your fifth type of fraction is equivalent fractions. If two or more fractions have the same value, they are called equivalent or equal fractions. अगर दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस है, उनकी सेम वैल्यू है, तो फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे या फिर इक्वल फ्रैक्शन. एग्जांपल देखिए 1/3, 3/9, 6/18 and 9/27 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और इक्वल फ्रैक्शन. ये देखिए यहाँ पर ये इक्वल फ्रैक्शन क्यों कहलाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्यों कहलाएंगे, बिकॉज द वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शंस आर इक्वल. यहाँ पर देखिए 1/3, ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है 1/3, सेकंड फ्रैक्शन 3/9 है, ठीक है. ये जो है ये लोएस्ट टर्म में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा है. इसे अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, लोएस्ट टर्म में करेंगे तो 1/3 आएगा. कैसे आएगा देखिए यहाँ पर 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, ठीक है. 3 से डिवाइड करेंगे दोनों नंबर को तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9. सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया. लोएस्ट टर्म में देखिए 1/3, ठीक है. तो इन यही वैल्यू आ गई. इसका मतलब ये जो है, ठीक है, इनके जो है वैल्यू जो है सेम है, ठीक है, इन फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम है, इसलिए ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे या फिर इक्वल फ्रैक्शन, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर देखिए 6/18 है, ठीक है, तो 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18, 1/3 इसकी भी वैल्यू आएगी, ठीक है, तो इसके बराबर आ जाएगी. तो इसका मतलब ये भी इक्वल है इसके बराबर, ठीक है. अब यहाँ देखिए 9/27, 9 1 जा 9 करेंगे, ठीक है, 9 3 जा 27, ठीक है. यहाँ देखिए 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो 1/3 है, 1/3 लोएस्ट टर्म, तो इसके बराबर आ गया. तो दैट्स व्हाई दिस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्वल फ्रैक्शन, ठीक है. यहाँ पे देखिए 9/27, 9 1 जा 9, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, ठीक है, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 1/3 इसकी भी वैल्यू आ गई, ठीक है. सो ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस ऑल द फ्रैक्शंस आर सेम, ठीक है. सो द वैल्यूज ऑफ ऑल दिस फ्रैक्शंस आर सेम, दैट्स व्हाई दिस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और इक्वल फ्रैक्शन. यहाँ पे देखिए मैंने समझा दिया आपको, सिंपलीफाई करने के बाद यही वैल्यू आएगी 1/3, ठीक है. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 इसकी वैल्यू आ गई. 6/18 है, ठीक है, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ठीक है, इसकी वैल्यू 1/3 आ गई. यहाँ पर 9/27, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, इसे सिंपलीफाई करने के बाद 1/3 आ गया, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई सेम, यही वैल्यू. तो इसलिए इस टाइप के फ्रैक्शन जो है इक्वल फ्रैक्शन कहलाते हैं या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं.
So that's why fraction 1/3 is equal to fraction 3/9 is equal to fraction 6/18 is equal to 9/27. So these types of fractions whose values are same are called equivalent fractions or equal fractions. Now see here, the value of a fraction does not change if its numerator and denominator are both multiplied or divided by the same non-zero number. किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती अगर आप उसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, ठीक है। एग्जांपल देखिए यहाँ पर 4/7 है, ठीक है। 4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से और 7 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इसका मतलब न्यूमरेटर इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड आल्सो डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई बाय 2 से और न्यूमरेटर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सेम नॉन जीरो नंबर से, ठीक है। फिर देखते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज होती है या फिर नहीं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 × 2/7 × 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी 4 2 जा 8, यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है। देन 7 2 जा 14 आ गया, 8/14। अब देखेंगे इसकी वैल्यू क्या, इसके वैल्यू के बराबर है, ठीक है। 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद यही आएगा 4/7। So that's why 4/7 and 8/14 are equivalent fraction और equal fractions, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर यहाँ पर 15 है, डिनोमिनेटर 20 है, तो 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे और 20 को भी 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी इसके बराबर है या फिर नहीं है। तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 15 divided by 5 we will get 3. So here decision 3 divide 20 by 5, 5 4 जा 20, so here decision 4 3/4। अब चेक करेंगे इसकी वैल्यू सेम है, yes the value of 15/20 and 3/4 are same. Why? See here 5 3 जा 15 and 5 4 जा 20, ठीक है। 3/4 आ जाएगा इसे सिंप्लीफाई करने के बाद। It means the value of 15/20 and 3/4 are same. That's why 15/20 and 3/4 are equivalent fractions. तो इसका मतलब यही हुआ कि किसी भी फ्रैक्शन के, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर से, सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया 4 को 2 से और 7 को भी मल्टीप्लाई किया 2 से, तो इसकी वैल्यू जो आई है 8/14 वो इस वाली वैल्यू के बराबर ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 8/14 है, इसे सिंप्लीफाई करने के बाद 4/7 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 4 जा 8 and 2 7 जा 14, so the value of 8/14 is 4/7. So that's why if you multiply the numerator and denominator of any fraction by the same non-zero number, then the value will be same. If you divide numerator and denominators of a fraction by the same non-zero number, then the value will remain same. यहाँ पर देखिए 15/20 है, ठीक है। 15 को भी हम डिवाइड करेंगे 5 से, 20 को भी हम डिवाइड करेंगे 5 से। देखिए दोनों यहाँ पे सेम नंबर है 5 5, सेम नॉन जीरो नंबर, यहाँ पे लिखा सेम नॉन जीरो नंबर, ठीक है। सेम नॉन जीरो नंबर से मैंने यहाँ क्या किया डिवाइड किया है न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15 को डिवाइड करिए 5 से, क्या आएगा 3 आएगा, 20 को डिवाइड करिए 5 से 4 आएगा, 3/4, ठीक है। तो अब देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, हाँ सेम है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 3 जा 15, ठीक है, एंड 5 4 जा 20, so 3/4. After simplifying 15/20 we will get 3/4. So that's why 15/20 and 3/4 are equivalent fractions. So that's why if you multiply the numerators and denominators by the same non-zero number, or if you divide the numerator and denominator by the same non-zero number, then the value of the fraction remains same.